کچھ اختتامی ابواب ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف خوفناک ہوتے ہیں بلکہ ایک زمانے کی علامت بن جاتے ہیں۔ ایسابیلا آف کاستیل کی موت ایسا ہی ایک باب ہے۔ وہ ملکہ جس نے اسپین کو ایک تاج میں جوڑا، پوری ثقافتیں مٹا دیں، سلطنتیں ختم کی اور برازموں کی تقدیر بدل دی۔ اس کی موت نہ پرسکون تھی، نہ باوقار، نہ شاہانہ۔ اس کا انجام آہستہ، گھٹن بھرا اور دل چیر دینے والا تھا، اسی بدن کا ٹوٹ جانا جس نے نصف دنیا کو شکل دی تھی۔ سوچیں، ایک ایسی حکمران کا تصور جس کی آواز اشراف کو جھکا دیتی تھی، کونسلوں کو خاموش کر دیتی تھی اور روم تک کو چیلنج کر سکتی تھی، اب ایک ایسے بستر میں قید ہے جس سے اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں۔ پیٹ سوجا ہوا، اعضاء سوزش سے بھرے ہوئے اور جسم کا ہر نظام باری باری جواب دیتا ہوا، جبکہ اس کا ذہن ابھی تک پوری طرح ہوشیار تھا۔ ایک ایسے بدن میں قید جو خود اس کے خلاف بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اس کی آخری اذیت میں داخل ہونے سے پہلے لازم ہے کہ ہم اس عورت کو سمجھیں جو وہ تھی۔ ایسابیلا آف کاستیل 1474 سے 1504 تک حکومت کرتی رہی۔ اپنا نام یورپ کی ابتدائی جدید تاریخ کے پتھروں میں کندہ کر کے اس نے غرناطہ فتح کیا، کولمبس کی سمندری مہمات کی مالی سرپرستی کی، خزانے کو اثر نو ترتیب دیا، فوج کو نیا ڈھانچہ دیا اور مذہبی یکسانیت کو ایسی لوہے کی گرفت میں نافذ کیا جس نے پورے دور کو خوفزدہ کر دیا۔ اس نے کاستیل اور آراگون کو یکجا کر کے ایک عالمی سلطنت کا نقشہ تیار کر دیا، لیکن یہی عورت یہودیوں اور مسلمانوں کو جلا پتن کرنے والی بھی تھی، جبری مذہبی تبدیلی کا حکم دینے والی بھی، اور انکوزیشن کی پشت پناہ بھی۔ وہ رحم اور سختی، عبادت اور ظلم ایسے تھے جیسے ایک ہی کپڑے کے دو دھاگے۔ مورخین نے جو اس کے مداح تھے صاف لکھا، ایسابیلا ایک طوفان تھی تاج پہنے ہوئے۔ ظاہری طور پر وہ پتھر کی مورت لگتی، مقصد اور ایمان میں تراشی ہوئی، باطن میں وہ انسان تھی۔ حمل، اسقاط حمل، بے رحم حکمرانی اور بچوں کے بچھڑنے سے پیدا ہونے والے زخم اسے اندر سے چیر رہے تھے۔ 8 حملوں نے اس کی اندرونی ساخت بدل دی تھی، روحانی سختیوں نے اس کے اعضاء کمزور کر دیے۔ سال ہا سال کے سفر، لشکر گاہیں، روزے اور طویل درباری اجلاس اس بدن پر قرض کی طرح چڑھتے گئے۔ خادماؤں نے وہ نشانیاں بہت پہلے دیکھ لی تھیں جنہیں دربار سرگوشیوں میں بھی ڈر کر لیتا تھا۔ رنگ اڑ جانا، سینہ گھٹنا، سانس کا کم پڑ جانا، راتوں کا بے قرار ہونا، ہاتھوں میں لرزش آنا۔ پھر بھی ایسابیلا بخار میں، تھکن میں اور بے نیند راتوں میں کام کرتی رہی۔ یہ بیماری خاموشی سے شروع ہوئی۔ پہلے صرف نچلے پیٹ کی ہلکی سی تکلیف جسے اس نے تھکاوٹ کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ میٹنگز میں تیز چھبن، بیٹھنے سے کچھ آرام، اور پھر دھیمی آگ جیسا درد۔ ہر ہفتے کچھ بڑھتا ہوا۔ سالوں میں علامات گہری ہوتی گئیں، اٹھتے ہوئے لڑکھڑانا، انگلیوں کا کپ کپانا، اچانک پسینہ، بار بار بخار، مگر اس نے ہر علامت کو خدا کا ایک اور امتحان سمجھ کر قبول کیا۔ جدید تاریخ دان مانتے ہیں کہ اسے رحم یا بیضہ دانی میں گہری سوزش یا پھوڑا تھا، ایک ایسا خاموش مرض جو آہستہ آہستہ پورے پیٹ میں پھیلتا ہے۔ یہ اس کے بدن کے اندر لڑی جانے والی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جو مسلسل نہ رکنے والی اور دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ایسابیلا کی کامیابیوں نے اسی جسم کو توڑ ڈالا جو انہیں اٹھائے پھرتا تھا۔ اس نے سیاسی ذہانت اور خطرناک اتحادوں کے ذریعے کاستیل کا تاج حاصل کیا، اپنے سوتیلے بھائی کے حمایتیوں کو مات دی، ایسی شادی کی جس نے پورے یورپ کا نقشہ بدل دیا، اور ضرورت پڑنے پر زرہ پہن کر فوجوں کے درمیان گھومتی رہی۔ اسے ناقابل تھکن کہا جاتا تھا۔ طاعون کے مریضوں کے درمیان چلتی، بیماروں کو دلاسا دیتی، افواج کو حوصلہ دیتی اور دربار کو اس کی برداشت سے زیادہ کام کرواتی، مگر یہی قوت اس کے بدن کے خلاف گئی۔ 1-2-10 میں غرناطہ کے قریب پہلا واضح انتباہ آیا۔ ایسابیلا کو ایسا بخار چڑھا کہ خیموں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ملکہ مرنے والی ہے۔ طبیب سرگوشیوں میں کہتے کہ رحم اور معدہ سوزش سے بھرے ہیں۔ وہ سنبھل گئی،
ज़ाहिरी तौर पर, मगर अंदर की खराबी यहीं रह गई। 10 साल बाद दर्द वापस आया, ज्यादा तेज, ज्यादा भारी। उसे महसूस हुआ कि अंदर कुछ अपनी जगह से हिल गया है। पेट के निचले हिस्से में कोई वजन, कोई धड़कता हुआ गुब्बारा जो हर धड़कन पर तकलीफ देता था। भूख खत्म हो गई, नींद टूट फूट गई। उसने ये अलामात दरबार से छुपा ली और सिर्फ अपने एतराफी पादरी से कहा कि अंदर कुछ लोहे की तरह दहक रहा है। पादरी ने कहा, ये इलाही आजमाइश है। उसने उसे कबूल किया। तबीबों ने अपने वक्त के तमाम तरीके आजमाए। जलाब खून निकालना, जड़ी बूटियों के गुस्ल, तपिश वाले पिलिस्तर, कुछ भी काम ना आया। कुछ ने उसे और खराब कर दिया। 1513 तक ये सब छुपाया ना जा सका। खादमाओं ने देखा कि वो खड़े होने में फर्नीचर पकड़ती है, 2 जानू बैठने में मदद चाहिए, चलती ऐसे जैसे अंदर कुछ टूट जाएगा। औलाद की मौत, जवान, फिर असाबिल्ला, फिर नन्हा मिगुएल ने उसके दिल को वैसे ही तोड़ दिया। 5100 के अवाइल में मोर्रखीन ने इसे आंतों की बीमारी कहा। एक गहरा दाखिली फोड़ा, पैप से भरा हुआ, जो फटने वाला था। जब ऐसा फोड़ा फटता है तो जहरीला मादा पूरे पेट में फैल जाता है। आज उसे पेट की झली की शदीद सोजिश पेरिटोनाइटिस कहते हैं। एक ऐसी अजियत जो आहिस्ता मारते हुए पूरा वजूद खा जाती है। एक रात इसाबेला ने चीख मारी, ऐसी चीख के मुहाफिज दौड़ते हुए अंदर आए। उसने कहा, ये खिंचाव है, मगर उसके बाद वो सांस भी ठीक से ना ले सकी। बुखार आसमान छूने लगा। उसका पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया। महसूस किया कि कुछ फट गया है, कुछ बह रहा है, कुछ जल रहा है। यही से उसकी लंबी, बेरहम, नाकाबिले रोक सफर मौत शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसे ना दुआ रोक सकती थी, ना तबीब, ना फुलादी कुव्वते इरादी। जैसे जैसे इसाबिला की अजियत गहरी होती गई, दरबार भी इस तरह बदलने लगा जैसे कोई अजीम मशीन अपने कल्ब के टूटने पर धीरे धीरे रफ्तार खो दे। खामोशी से, एहतियात से, यूं जैसे किसी आवाज से वो नाजुक तवाजुन टूट जाए जो अब मलका की जान के साथ बंधा हुआ था। वो मलका जो कभी बर्फानी तूफानों में घोड़े पर सवार होकर लश्करों का हौसला बढ़ाती थी, अब बिस्तर से कुर्सी तक जाना भी उसके लिए अजियत था। हर हरकत उसके सूजे हुए पेट में आग का एक झटका भेजती। वो दर्द इतना शदीद था कि छुपाना भी नामुमकिन हो गया था। उसका बुखार अब बीमारी की तरह नहीं बल्कि मौसम की तरह बर्ताव करता था। कभी धीमी आंच पर भड़कता, कभी भड़कती हुई आग की तरह लपक जाता। चादरें उसके पसीने से तर हो जाती और चंद मिनट बाद दोबारा भीग जाती। गर्म पोटलियां उसके चेहरे पर रखते ही ठंडी होने के बजाय गर्म महसूस होती। तबीब खराब अखलात और अंदरूनी सोजिश की बातें करते रहे, मगर असल सच जानते थे। इन्फेक्शन अंदर से उसके वजूद को डबो रहा था। उन्होंने उसे खून निकालने से कमजोर किया, जलाब दिए, मरहम और गर्म तेल लगाया, कुछ फायदा ना हुआ। उसका पेट रोज बरोज सख्त, सूजा हुआ और दबाव से भरा हुआ लगता, जैसे अंदर कोई गुब्बारा फूल रहा हो। जब तबीब उसके पेट पर हल्का सा हाथ रखते, इसाबिल्ला तेजी से सांस खींचती। जिल्द के नीचे एक लकड़ी जैसी सख्ती महसूस होती थी, जिसकी वो कोई तौजीहा न दे पाते। आज हम जानते हैं कि वो क्या था। पेट की झिली में फैलता हुआ पेपालूद मादा जिसने सब कुछ जकड़ लिया था। भूख गायब, जबान भारी, मन में धात का सा जायका। खाना देखते ही उसे मतली होती। यखनी भी हल्क से नीचे ना जाती। जबान पर तलखी चढ़ी रहती। मन में लोहा घुलने जैसा जायका कभी खत्म ना हुआ। उसने बिस्तर से ही हुकूमत चलाने की कोशिश की। दस्तखत करती, मशवरे देती, हिदायत जारी करती, मगर हर दिन उसे थोड़ा मजीद अंदर धकेल देता। ताकत का खेल उसके बिस्तर के गिर्द तेज होने लगा। फर्डिनेंड, उसका शरीके इक्तिदार, शदीद बेचैनी में मुब्तला था। बगैर असाबिल्ला की जहानत और इख्तियार के वो कास्तील पर गिरफ्त खो देने से डरता था। दरबार धड़ों में बंटने लगा। फर्डिनेंड के हमायती, जवाना के हमायती, वो जो गैर मुल्की ताकतों से उम्मीद लगाए बैठे थे, और वो सब जो मुर्दार खोर गधों की तरह उसके आखिरी सांस का इंतजार कर रहे थे।
महल के दरो दीवार में सरगोशी गूंजी, क्या मलका मर रही है? इसाबिल्ला ने यह सब महसूस किया। वो हुकूमत से चिमटी रही, हालांकि ताकत इसके वजूद से फिसल रही थी। कभी कभी इसकी आंखें धुंधला जाती, सांस अटक जाती, अल्फाज बिगड़ जाते। खादमाओं ने सबसे पहले तब्दीलियां महसूस की। आंखों के गिर्द नीलगों साए, तेज रफ्तार बेकाबू सांस, धड़कन का हिचकोले खाना, ये सब आज के मुताबिक सिस्टेमिक सीप्सिस की अलामात थीं। बुखार के साथ आने वाली पिघलती अक्ल, रातों में वो चादर मजबूती से पकड़कर कांपती। दर्द इतना शदीद कि वो चीख उठती, खा वो कभी चीखी ना हो। इसके पेट में अंदरूनी सोजिश ऐसी थी जैसे कोई जलता हुआ कोयला इसके जिस्म में घुस गया हो। इसका पेट अब बदशक्ल तौर पर फूल चुका था, जिल्द खिंचकर तनी हुई थी। दर्द इतना बढ़ गया कि कपड़े की मामूली हलचल भी उसे कराहने पर मजबूर कर देती। आंतों में गैस भर जाती, सांस लेना मुशक्कत बन चुका था। वो तकिए लगाकर नीम बैठे अंदाज में सोती, क्योंकि सीधा लेटने से यूं लगता जैसे अंदर कोई वजन उसे कुचल रहा हो। फिर वो चीज हुई जिसे दरबार वाले बयान न कर सके। बदबू, पहले मामूली नम पसीने जैसी, फिर चंद दिनों में नाकाबिले इनकार सड़ते हुए अंदरूनी गोश्त की बू। कमरा हमेशा बखूर से भरा रहता, मगर बखूर और सड़न की मिली जुली महक कमरे को नाकाबिले बर्दाश्त बना देती। इसाबिल्ला की खादमाएं शराब और जड़ी बूटियों में भीगे कपड़ों से उसे साफ करती रहती, मगर एक दूसरे से कहती, इसका पेट हाथ लगाने से ही दहकता है, ये अंदर से जल रहा है। कभी कभी इसाबिल्ला कहती कि उसे अंदर कुछ हलता हुआ महसूस होता है। वो दरअसल पीप का बहाव था। तबीबों ने मजीद जांचने से रोक दिया। वो खुद खौफजदा थे। बुखार दिमाग में दाखिल हो गया। वो कभी मरे हुए बच्चों को पहचानने लगती, कभी गरनाता के मुहासरे को दोबारा जिंदा देखती, कभी जंगी अहकामात देती, ऐसे जैसे उसके सामने लश्कर खड़ा हो। बदन जल रहा था, ज़हन बुझ रहा था, मगर इरादा अब भी फौलादी था। उसी हालत में उसने जवाना की विरासत का हक पूरी सख्ती से दोबारा कायम किया। फर्दिनंद अंदर ही अंदर लरस गया, मगर इसाबिला ने पसीने और कपकपी में भी कहा, यह मेरा मुल्क है और वो मेरी वारिस है। इसके अल्फाज अब भी हुक्म थे। मौत का साया फैलने लगा। इसकी हालत हर घंटे खराब हो रही थी। दबाव से फटता हुआ पेट, जिल्द का हद से ज्यादा खंच जाना, सांस का तेज और बेकायदा होना, होंठों का खुश्क फट जाना, आंखों में बुखार का धुंधला का, और सबसे बढ़कर वो बदबू, एक मीठी खमीर ज़दा सड़ती हुई महक जो कमरे के हर गोशे पर कब्जा कर चुकी थी। इसके होश बुझ बुझ कर जलते रहे, एक लम्हा साफ, अगला लम्हा धुंधला। फिर भी वो वसीयतें करती रही, हुकूमती हुक्मनामे दुरुस्त करती रही, कभी हाथ में सलीब दुबोच कर दर्द से चीख उठती, ऐसी चीख जो कमरे के सब दिल हिला देती। एक सुबह सूरज निकलने से पहले इसाबिल्ला ने उठकर बैठने की कोशिश की। कहा, मुझे दुआ के लिए घुटने टेकने हैं। खादमाएं उसे सहारा देकर उठाने लगी, लेकिन अचानक ऐसी चीख निकली जैसे आग इसके अंदर फट पड़ी हो। उसने पेट पकड़ लिया, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। ये अंदरूनी फोड़े के मुकम्मल फटने का लम्हा था, जिसके बाद सिर्फ मौत रह जाती है। सांस बेतरतीब, नब्ज कमजोर, आंखें धुंधलाई हुई, सब कुछ अंदर ढह चुका था। इसके आखिरी रसूमात की तैयारी शुरू कर दी गई। फर्डिनेंड अंदर आया, चेहरा खौफ से सफेद। इसाबिल्ला ने आखिरी बातें कही, जवाना के हक की तौसीक, स्पेन के लिए दुआ, अपनी आखिरी ख्वाहिशात। उसने फर्डिनेंड का हाथ थामा, हल्के से दबाया। जो कुछ भी बाकी था वो इसी दबाव में सिमट गया। 26 नवंबर 1504 दोपहर के बाद इसाबिल्ला ऑफ कास्तील ने अपनी आखिरी लरसती सांस ली। उसका सीना एक बार उठा, फिर गिरा और कभी दोबारा न उठा। वो औरत जिसने अपनी मर्जी से एक सल्तनत को कायम रखा चली गई, लेकिन उसकी मौत इस कहानी का इख्तिताम नहीं थी, क्योंकि जिंदगी छिन जाने के बाद भी उसका खौफ, उसकी बीमारी, उसका जिस्मानी जवाल, उन सब ने एक आखिरी हौलनाक राज छोड़ा, जिसे दरबार बहुत जल्द सामने आता देखने वाला था। इसाबिल्ला की सांस रुक जाने के बाद भी
मौत ने वो सुकून नहीं दिया जिसकी उसके दरबार को उम्मीद थी। उसके जाने ने इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए हौलनाक बाब की शुरुआत की। ऐसा बाब जो ना मैदाने जंग में लिखा गया ना कौंसलों में, बल्कि उस बंद बुखार ज़दा कमरे में जहां उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हुआ। उसकी जिल्द पर बीमारी का पीला सरमई सा साया बाकी था। मगर खादमाओं के लिए सबसे ज्यादा होलनाक चीज ये ना थी बल्कि वो बू थी। अब जबकि जिंदगी की आखिरी मज़ाहमत भी खत्म हो चुकी थी, सड़न ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। न पुखोर, न तेल, न जड़ी बूटियां इस महक को छुपा सकी। उसकी खादमायों से आहिस्तगी से धोते, बाजों से पसीना साफ करते, बाल संवारती, चादरें बदलती रहती, मगर वो तुर्श, बीमार और अंदर से उठती हुई बू बाहर ही बाहर नहीं, उनके दिलों में भी उतर जाती। वो काम करते हुए रोते, जानती थीं कि जिस मलका की अजमत के वो गवाह थी, उसका जिस्म अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वकार को बचाना तकरीबन नामुमकिन होता है। उन्हें रस्मी तौर पर इसका हनोत किया जाना जरूरी था। वो एक मलका थी और शाहाना रसूमात की पाबंद भी, लेकिन तबीब झिझक गए। उसका पेट चाक करना नामुमकिन था। अंदर के अज़ा सूजे हुए, फटे हुए, सोजिश से भरे, पीप में डूबे हुए, ऐसा मंजर होते जिसे देखकर सख्त दिल खादिम भी हिल जाते। किसी में हिम्मत ना थी कि जल्द के नीचे छिपी हकीकत को छेड़ा जाए। चुनांचे उन्होंने सिर्फ ज़ाहिरी अलामती हनोत किया। खुशबूदार तेल, पसी हुई मसाला जात, राल में भीगी हुई पटिया, खुशबूदार कपड़ों की तह दर तह लपेट, उन्होंने पूरी नरमी और अदब से उसे कफनाया। लेकिन सड़न की वो मीठी, गहरी, बेजार कुन बो फिर भी खुशबुओं के नीचे से फिसल कर बाहर आती रही, हर चीज पर अपनी मौजूदगी की मुहर लगाती हुई। मौत के बाद भी ईसा बिल्ला की आखिरी बीमारी छुपने पर आमादा ना थी। उसका जनाजा शानदार था, बेहद अजीम, रसूम व रवाज से लबरेज, स्याह कपड़े में लिपटे हुए झंडे, चमकते हथियारों में मलबूस शहसवार और राहिब जो संजीदा आहंग में हमदो सना पढ़ रहे थे। अशराफ दरबारी सफ़ों में खड़े थे, खुले आम रो रहे थे। स्पेन उस मलका का मातम कर रहा था जिसने उसकी तकदीर बदल दी थी। लेकिन इस पूरी शान शौकत के पीछे एक खामोश हकीकत चल रही थी। स्पेन अब एक गैर यकीनी दौर में दाखिल हो रहा था। वो औरत जो सिर्फ अपनी कुव्वत इरादी से बिखरे हुए मुल्क को जोड़े रखती थी, चली गई थी। दरारें जो बरसों से नीचे ही नीचे मौजूद थीं, अब सतह पर उभरने वाली थीं। इसके जिस्म को गरनाता ले जाया गया। वही शहर जो उसकी सबसे बड़ी फतह की अलामत था, वही शहर जिसे उसने सदियों की मुस्लिम हुक्मरानी से छीना था। लेकिन सफ़र तवील था। उसके कफन और लपेटे हुए कपड़े तेल और मसालेजात से इतने भीग चुके थे कि खादिम ताबूत के करीब झुकने से भी घबराते थे। राल और खुशबू सड़न की बू के साथ मिलकर एक ऐसा बोझल, दम घूंट देने वाला फिजा बना चुकी थीं जो देर तक फिजा में लटका रहता। वहां आखिरकार उसे संगे मरमर के नीचे दफन कर दिया गया। एक मलिका जो अफसाना बन चुकी थी, मगर अफसाने हमेशा सच नहीं बोलते। सदियों तक ईसा बिल्ला का नाम बतौर अलामत जिंदा रहा। कुछ के लिए वो स्पेन की मुकद्दस मेमार थी, वो मलिका जिसने रियासतों को मुत्तहिद किया, बादशाहत को मजबूत किया, ऐसे सफ़र फंड किए जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल डाला और दोबारा मसीही स्पेन को बहाल किया। दूसरों के लिए वो तबाही की अलामत थी। वह औरत जिसने यहूदियों और मुसलमानों को निकाल बाहर किया, जबरी तब्दीली मजहब का हुक्म दिया, इंक्विजिशन को आज़ाद किया और आगो अजाब के जरिए स्पेन की रूह को तराशा। मगर एक बात पर सब मुत्तफिक थे, वो गैर मामूली थी, मगर तारीख ने मुजस्समों, तस्वीरों और यादगारों में इसकी मौत की हकीकत महफूज नहीं की। वो सस्त और हौलनाक टूट फूट, महीनों का बुखार, सूजे हुए अंदरूनी आज़ा, पीप और सड़न से भरा पेट, बदन से उठती सड़न, वो अजियत जिसे ना ईमान रोक सका, ना ताकत, ना ताज। उसकी आखिरी सांसों ने एक सादा सी हकीकत अयां की।
वो मलका जो दुनिया बदल देती है, वो भी उसी सड़न के आगे बेबस है जो आखिरकार हर जिस्म को पकड़ती है। ताकत किसी को भी जिस्म की ज़वाल पजीर हकीकत से बचा नहीं सकती। न ताज, न सल्तनत, न माजी की फतूहात, कोई भी गोश्त के गलने के कानून से बालातर नहीं। न एक मलिका, न इसाबिल्ला ऑफ कास्टील।